جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں زندہ امید نظر آتی ہے، زندگی نظر آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایسے مسیحت نہیں پھیل رہی، اس کے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اس ویک کے اندر میں ایک شخص کی گواہی سن رہی تھی، انڈیا سے تھا وہ شخص، خدا کا خادم ہے، اور انہوں نے اپنی گواہی میں بتایا کہ میں مسیحوں کو دکھ دینے والا تھا، اور کہتا ہے میں پورے ویپن لے کر ایک چرچ کے اندر گیا، اور میں نے کہا آج جب یہ میرے مذہب کے خلاف بولیں گے، آج جب میرے خدا کے خلاف یہ بولیں گے، اور میں ان سب کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ ہے کون تھا؟ انڈین تھا، اور سردار فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے باڈی کے اوپر تمام ان سارے مواد کو لے کر گیا کہ جب یہ ہمارے دیوتا کے بارے میں، خدا کے بارے میں بولیں گے تو میں پورے چرچ کے اندر جتنے بھی مسیح کو ماننے والے ہیں ان کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ جب وہ شخص آ کر بیٹھ گیا، کسی کو نہیں پتا کیا ہوا، اس نے اپنی گواہی میں بتایا آج وہ یسوع مسیح کو پریچ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جب میں وہاں پر بیٹھا تو کلام شروع ہوا کہ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یسوع مسیح کسی ایک قوم مذہب کے لیے نہیں آیا، بلکہ یسوع مسیح کل جہانوں کی نجات بن کے آیا۔ وہ کہتے ہیں اس پریچنگ نے، خدا کے کلام کے اس حصہ نے میری زندگی کو بدل دیا، اور آج میں بتھیروں کو اس زندگی تک لا رہا ہوں۔ آمین۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ زندگی کی ندیوں کو کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے کیا جاری ہو جائے گا؟ نہیں نفرت، جھگڑے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں، ہاں میں ہی ٹھیک ہوں، یہ نہیں سکھاتا۔ یہ سکھاتا ہے ہم جہاں پر بھی کمزور ہیں ہمیں اس کے زور میں بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا تو میرے حضور چلو، ذرا اونچی بولنا ہے، میرے حضور چلو، تو میرے حضور چلو، آج صحیح آواز نہیں آئی، تو میرے حضور چلو، تو میرے حضور چلو، وہ کہتے تو میرے حضور چلو۔ کتنا مزہ آ رہا ہے اس کلام کو سیکھ کے، کتنوں نے برکت پائی ہے اس کے وسیلہ سے۔ پچھلی بار بہت امیزنگ میسج جو خدا نے ریویلیشنز کھولے، یہاں پر براہ راست خدا نے کلام کو جاری کیا۔ میں گزرے ویک میں بھی اس فیس بک پہ پیج پر جا کر اس میسج کو سن رہی تھی، اور میں نے یہاں پر تو سنایا، مگر جب میں نے اس کو دوبارہ ریکارڈنگ میں سنا تو آئی ایم سو بلیسڈ۔ آمین۔ کیونکہ ہم نے پچھلی بار کیا سیکھا تھا ذرا دسو؟ اپنے چال چلن تو کی نے مسیح دے دشمنوں کہندے جیڑا کوئی اپنی سلیب چک کے میرے پیچھے نہیں آ سکتا وہ میرا شاگرد بھی نہیں، میرا ویسے اتنا ویکلی یہ چل رہا ہے، آپ سب کو یاد رہنا چاہیے۔ ہم چھٹے پوائنٹ پر تھے، کوئی 5 پوائنٹ آج سنائے ہیں ذرا، ساڈا بھی دل خوش ہو جیسی کچھ سنایا تھا۔ ہاں چلیں، ایک بہنیں بتائیں گی، ایک بھائی بتائیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کلام کا؟ یہ دعا ماما تیاں نے کچھ کر جانا جس میں تھے۔ ہاں جو کلام کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور فوراً رسپونس دیتے ہیں، وہ لوگ زمین پر کچھ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند کو جاننے والے اس سے قوت پا کر زمین پر کچھ کرانا ستے بولنا بھی پڑتا ہے۔ ہاں بھائی دس لگے دوجا پوائنٹ کی سی؟ واہ 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 واہ، گاڈ بلیس یو۔ ہجے ہو لیجیے وقت اللہ۔ تیسرا پوائنٹ کی ہے جھولیاں چ پائے ہوندے نے تساں ہیں وارث جب تک مینوں ریویژن کرانی چاہیے۔ میرا ابا کہنا تو پچھلا سنانی ہے، میں کہو جنی دیر وہ نہ سمجھ آئی اگلے دی کتوں آنی ہے؟ اڑا لیف بھول جو تے بے سکھاؤ کتنے سمجھ آنی؟ جدو ٹیسٹ ہوں پھر پچھلا سارا سبق بھی نال
मैं इस साल टेस्ट दिता, बड़े साल बाद पढ़ना शुरू किया बाइबल कॉलेज में। जब उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने पहले सबक से लेके जो एंड तक पढ़ाया उस तक उन्होंने लिया। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं कहनी पिछला भी याद रखना चाहिए तो अगला भी याद रखना चाहिए, फिर ही तरक्की होती है। हाँ, पहला पॉइंट था बस तू मेरे हजूर चल, और दूसरा पॉइंट बस गौर करो के, तीसरा पॉइंट वारिस जब तक उसमें, और फिर चौथा पॉइंट था अंकल जी जो बोल रहे थे वक्त के ख्याल से, वक्त के ख्याल से तुम्हें ते वक्त तो पहले उस्तादी नहीं मारनी चाहिए जी। फिर पांचवा था बाज पे क्या था, अपनी मर्जी नाल चलण वाले, दिल कीता ते गिरजे टुर गए, ते फिर जो दिल कीता जेड़े टाइम कीता उस टाइम गए, जेड़ा चर्च का टाइम है बल्कि अपनी मर्जी वाले टाइम ते हैं। फिर चलना भी असी कुछ हिस्सियां ते कलाम ने जेड़े सानू पसंद ने या जेड़े सानू कंफर्ट जोन देंदे ने, यानी कि कलाम के वो हिस्से जेड़े साडी बरकत लई ने, या सानू उन्हां च की मिलदा है, तसल्ली, सुकून, इत्मीनान मिलता है, सानू आराम मिलता है, असी वो कलाम के हिस्से बोलने आ। खुदावंद बरकत देंदा है ते खुदा झंडा भी लांदा है, खुदा सजा भी देंदा है जिदों दे हुक्मां ते ना चलिए, जिदों मर्जी नाल चलिए फिर खुदा सजा भी देंदा। कहंदा बाज इनमें से क्या करते हैं, बेकायदा चलते हैं। ते छठा जड़ा मजमून सी वो बड़ा जबरदस्त सी कि बाज इन्हां विचों की ने सलीब दे, सलीब नाल बड़ा प्यार करनगे, चुम चुम रखणगे, उतले दीवार दे कोने दे उत्ते लगनी चाहिए। हाँ, ते पिछली बारी मैं दस्सिया सी अगर जिहड़ी सलीब है साडे ज़हनां च नक्श हो जाए, असी ज़मीन ते फतूहात दी जिंदगी नूं गुजारांगे, क्योंकि फतह दा पैगाम देंदी है। हालेलुया। सलीब का पैगाम क्या है, फतह का पैगाम है, निजात का पैगाम है, आज़ादी का। सलीब की देंदी है, फतह का निशान देंदी है। सानू पता चल जाता है कि सलीब के उत्ते यसू मसीह की होया सी, कुर्बान होया सी। कई सलीब नू बड़ा प्यार करते हैं, उसका जिक्र करके बड़ी खुशी, और दूसरे लोगों के सामने जेडे साडे हमसाए हुंदे ने, असीं उन्हां सामने कहने यसू ने सलीब ते की दित्ती सी, जान दित्ती सी। मगर अपने चाल चलन तो की हुंदे ने, हम बयान तो करते हैं सलीब को, मगर हमारा कैरेक्टर मसीह जैसा, हमारे कैरेक्टर के अंदर सलीब, सलीब का मतलब की दुख सहना। हाँ, फिर इतों असीं अगे निकल गए सां कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरे। फिर मैंने बताया था कि यहूदा ने जब खुदकुशी करने से पहले वो किस रूह का शिकार हो गया था, हैं, पछतावे दी रूह। ते खुदकुशी का लीडर कौन सी, ते फिर जो गया ना यसू नूं छड्ड के, ते यसू कोलों जो दूरी इख्तियार की, ते फिर किधर सीधा गया, मौत अल चला गया। और फिर असी अगे सीखिया सी कि जो बैड स्पिरिट है, डेथ स्पिरिट, खुदकुशी की जो स्पिरिट है, सुसाइड करने वाली, वो किस तरह से अटैक करती है। और दुनिया के अंदर मैंने बताया था 4 से 5 पॉइंट, 5 पॉइंट बताए थे कि ये स्पिरिट किन ज़्यादा लोगों पर अटैक करती है, जो अपने आप को अपने ही हाथों से कत्ल कर देते हैं, मौत की नींद सो जाते हैं, हलाक कर देते हैं। और ख़ुदकुशी जिसको हराम की मौत भी कहा जाता है, वो उसके ज़रिया से इस जहान फ़ानी से क्या कर जाते हैं, कूच कर जाते हैं। और 5 किस्म के लोगों के बारे में मैंने बताया था कि जब पछतावों की रूह उनको उसके अंदर ले जाती है, तो फिर वो अपना गला अपने ही हाथों से क्या कर देते हैं, घोंट देते हैं। तो मैं दसिया सी कई पक्खा भी जड़ा घर अलहदा खराब कर जाते। हाँ, ज़्यादा बहनें जो बाहर नहीं जा सकती उत्थे ही फा ले लेंदियां ने, पखे का पर भी डिंगा ते आपी भी हैं, नुकसान भी कर जांदियां ने और टुर भी जांदियां ने। बहुत सारे मर्द भी ऐसे करते हैं। और 5 लोगों के बारे में मैंने बताया था। पहला पॉइंट था 50% जो दिमागी मरीज होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मार देते हैं। दूसरा पॉइंट था कि जो लोग मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या उनकी जहनी हम आंगी ना होने की वजह से जो तकरीबन 27%
दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं 27% मियाँ बीवी के झगड़े की वजह से क्या हो जाती है? डेथ स्पिरिट्स काम करती हैं, खुदकुशी करना नहीं। फिर इस तो बात दसिया सी कि जेड़े नशाबाज ने 18% वो लोग जेड़े ने वो खुदकुशी करते हैं जेड़े नशे दे विच आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नशियां। फिर 10% मैंने बताया था वो लोग थे जो जॉबलेस हैं या गुर्बत का शिकार है। ये बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं यही नॉलेज दे रहे हैं भाई। आज अगर आप पूरी दुनिया के ऊपर देखें तो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और यंगस्टर ज़्यादा हैं। मैं दसिया सी कई बावां वड्ड लेंदे ने किहदे विच? दुनिया की मुहब्बत। फिर एक दसिया सी आशक भी मैं जेड़ा छाल कट्ठी मारदा ते दूजे पासों है। दसिया सी मैं भी कि वो किंज दी मुहब्बत कर रहा सी। उस लड़की को मोहब्बत के झांसे में ले जाकर जब उसने दरिया में छाल मारी झील में, तो वो दूसरी साइड से क्या हो गया, खुद निकल गया, औरत ने उत्थे छड़ गया। मगर शुक्र है 15 मौजूद सी। आज सारी दुनिया के अंदर 15 मौजूद है, मगर मैं समझती हूँ आज उन लोगों के लिए जो मायूसियों का शिकार है, यीशु की सलीब दस्तयाब है। ये आपको जिंदगी का पैगाम दे सकती है। 15 ते कोशिश कर दीजिए सिर्फ हैं। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏ तो उम्मीद नज़र आ जाती है। मगर याद रखिएगा जहाँ पर दुनिया आपको ना उम्मीद करेगी वहाँ पर सलीब आपको खड़ा कर देगी और ये आपकी ज़िंदगी में उम्मीद, ज़िंदगी और हमेशा का अपना जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करेगी और आपकी मायूसी को ज़िंदगी में और खुशी में और शादमानी में बदल देगी। क्योंकि वो कहते हैं सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है जी, बड़ी कुदरत है। जो मायूसी है ये मुख्तलिफ तरह से अटैक करती है। और मैंने बताया था कि इसमें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर रोज़ 15 से 35 लोग मुख्तलिफ इलाकों, कस्बों, शहरों, गली कुचों में से जो रिपोर्ट हैं ये बताई जाती है, जो केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर न्यूज़ के ज़रिए से आते हैं, 15 से 30% पाकिस्तान के अंदर आज ये स्पिरिट काम कर रही है। और लोग अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरे ना होने की वजह से अपना गला खुद क्या कर देते हैं। इस स्पिरिट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। निजात का पैगाम आप कितने हैं जो समझते हैं कि मुझे निजात के बारे में पता है? तौबा दे बारे च किन्नियां नूं पता है? यीशु मसीह साडे लई कुर्बान होया सी, किन्नियां नूं पता? जरा हाथ चुको। ये तो तुहानूं पता है कुर्बान होया सी। हाँ, ये तुहानूं पता है कि उन्हें मौत नूं अपने उत्ते लिया सी। मगर यह स्पिरिट अज भी की कर रही है, काम कर रही है। और इसके बारे में नॉलेज होना चर्चिस के अंदर, मसीही कौम के अंदर इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमने इस स्पिरिट से क्या करना है, बचना है। अगर कोई भी मायूसी, नाउमीदी या कोई भी फेलियर पन हमारी लाइफ के अंदर आता है और ये आके स्पिरिट हम पर अटैक करे, तो हमने इसके साथ क्या करना है, फाइट करना है। कभी भी अपनी ज़िंदगी को, अपने बदन को और अपनी ज़िंदगी में उन बरकतों को लाइट नहीं लेना जो बरकतें, नेमतें खुदा ने हमें दी हैं। ज़िंदगी, सेहत, सलामती, हमारे दिल की धड़कनों को खुदा ने कायम रखा है ताकि हम इन बदनों से ज़िंदा खुदा की गवाही बनकर बतेरों तक अंजील का पैगाम लेकर जाएं। क्योंकि उसने अब्राहम को कहा तू मेरे हजूर चलो, तू मेरे हजूर चलो। तो खुदा दी हजूरी जी कामलियत है, जो हजूरी जो बाहर हो गए तो फिर कामलियत भी नहीं है। ज़रा निकालेंगे हवाला, हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब, जहाँ पर हम देखेंगे कि यहूदा ने ये पैसे वापस करने की कोशिश की, मगर वो क्या हो गया, नाकाम हो गया। आज मैं आपको बताऊंगी कि वक्त पर ठीक फैसले हमारी ज़िंदगियों में हमारी बरकत को जारी करते हैं, मगर ठीक वक्त में ठीक फैसला ना करना हमें खुदा से बहुत दूर ले जाता है और पछतावों का क्या कर देता है, शिकार कर देता है। पछतावों की रूह के बारे में आज और ज़्यादा गहरे तौर पर हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर
बहुत सारी जिंदगियों ने जब अपनी वो बरकत जो खुदा ने उनको दे रखी थी, जो नेमतें खुदा ने उनको दे रखी थी, जब उनको ना चीज़ जाना तो फिर वो उस चीज़ की ख्वाहिश करते रहे, मगर वो बरकत उनको दोबारा ना मिली। क्योंकि बरकत पाने का भी एक क्या है, वक्त है। वो कहते हैं वक्त के ख्याल से तुम्हें क्या होना चाहिए, ते बरकत लैण वास्ते भी सानू की होना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। हर वक्त रूह में दुआ करते और खुदावंद के साथ एक रूह होने की जरूरत है हमें। आमीन। एक हुंदा जुबान तो दुआ करना, एक हुंदा रूह तो दुआ करना। आमीन। और जो रूह से की हुई दुआएं होती हैं वो जमीन पर जरूर कोई ना कोई हमारे लिए गवाही को क्या कर देती हैं। आप हवाला निकाले, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। मैं यहाँ पर एक गवाही देना चाहूँगी। इस वीक के अंदर मुसलसल 2 माह के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखा, और जब उन प्रॉब्लम्स को मैं देख रही थी तो इस वीक के अंदर पूरी रात मैं ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो गई। कुछ चीज़ों पर मुझे ये था कि कुछ पेमेंट मुझे यहाँ से मिलेगी और मैं कुछ चीज़ों में क्या हो जाऊँगी, ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाऊँगी, मगर उसका उल्ट हो गया। जो पेमेंट्स मुझे मिलनी थी, मेरी कमेटीज़, वो नहीं आ सकी मेरे तक, और जब वो नहीं आई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुई। क्योंकि मैसेज मैं दे रही हाँ तो शैतान नू पता है बथेरिया नू कढ़ रही है, पर मैं भी इनू की पाना है, डिप्रेशन में डालने आया मुझे। पूरी रात मैं नहीं सोई। जब सुबह हुई, सूरज ने पहली किरण दिखाई, मैंने अपनी विंडो में से देखा और मैंने कहा खुदा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि तू मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा। मुझे खुदा के सामने, मैं आपको यहाँ पर दावा देकर कहती हूँ, मुझे लाखों रुपए लगता है 1 रुपए। किसके सामने हैं, जरा ऊंची बोलियो, किधर सामने? खुदा के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं। इंसान को लोते 1000 रुपया लेना बड़ा मुश्किल है, मगर जो है खुदा से हम करोड़ों भी ले सकते हैं। आमीन। क्योंकि वो हमारा बाप है और हमारे मांगने से मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदा मैं तेरा शुक्र करती, तूने मेरे लिए कर दिया। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा है चर्च के अंदर, बड़े दावों को देखा है, बड़ा बोलने वालों को देखा है, मगर जब काम आया तो हैं एक को नहीं वफादार पाया है। और वो आसमानों पर बैठा है, जो आसमानों पर से अपने हाथ को जुम्बश देता और ज़मीन पर सारी शर्मिंदगी को ख़त्म कर देता है। आमीन। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो मैंने कहा खुदा मेरा भरोसा किसी इंसान पर, मेरा भरोसा किसी रिश्ते पर भी। हाँ, रिश्ते नाते खुदा ने बनाए हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर इन्ना तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी है तो हमने सिर्फ जिंदा खुदा पर रखनी है, जो कभी भी हमें शर्मिंदा या परेशान होने। तो मैंने जब खुदा के सामने रखा, यकीन जानिएगा लाखों रुपए का नुकसान था, लाखों रुपए के नीचे थी मैं। आज खुदावन के फजल से संडे का दिन है, बरकत का दिन है, खुदा ने मेरी उस लानत को, उस मुश्किल को ख़त्म कर दिया है। ये खुदा का रूह मुझे कह रहे गवाही दे। मुश्किलें हम भी देखते हैं, परेशानियां हम भी देखते हैं, शैतान के अटैक्स हम भी देखते हैं, मगर हम पूरी उम्मीद है कि यीशु जिंदा है और वही हमारा पालनहारा है और वही हमारी शर्मिंदगियों को शांतमानी में बदलने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आमीन। ये किसी को डिसाइड करने के लिए मैं नहीं बता रही, आपको इनकरेज करने के लिए बता रही हूँ। आपके रिश्ते नाते बहुत कीमती हैं, मगर इनसे उम्मीद, अगर उम्मीद लानी है दे दे तो लाया तानू कभी भी ना उम्मीद नहीं लौटाएगा। हालेलुया। ये कभी भी ना उम्मीद नहीं लौटाएगा। ये आपकी हर जगह पर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जहां पर आपको लगता है कुछ भी नहीं, ये वहां से ही आपके लिए सब कुछ निकाल कर सामने ले आएगा। आमीन जी। जरा निकालिएगा 27वें चैप्टर के अंदर से, जरा जल्दी से पढ़िएगा। यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो 30 रुपए उसने वापस देने चाहे यहूदा ने, मगर लैन वाले ने की कर दिता, इनकार कर दिया। जब उसने पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा
मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले भी हमने हवाला पढ़ा है कि जब यहूदा ने 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया और बेचने के बाद क्या हुआ, वो पछताया। उसने पछतावों की रूह के अंदर जाकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और वो अपनी जान का खुद ही जलाद बन गया और उसने खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं दिया। ये उसका अपना फैसला था। अगर वो खुदा से मांगता तो खुदा हो सकता है उसको माफ भी कर देता, मगर यहाँ पर उसने अपने लिए कौन सा डिसीजन लिया, मौत का डिसीजन। अब मौत और जिंदगी, कलाम कहता है कि जुबान के काबू में है, आपके कैरेक्टर में है, आपके रवैये में है। आप खुदा से जिस चीज की डिमांड करते हैं खुदा आपकी जिंदगी में वैसा ही करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। मगर यहूदा ने यहाँ पर अपनी जिंदगी का फैसला आप ही ले लिया। हाँ, बात जो आया 30 रुपए ते ले ले। मैं दसिया सी 30 रुपए जेड़ी कीमत होंदी सी गुलाम दी होंदी सी, और यीशु मसीह ने इस कीमत में बिक कर हमारे ऊपर से गुलामी के जुए को तोड़ दिया है। आमीन। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। यीशु मसीह 30 सिक्कों में बिक गए, मगर उन्होंने बनी नो इंसान के ऊपर से गुलामी का जुआ तोड़ दिया। यहाँ पर अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं इस बेकसूर के खून से क्या हो जाऊं, बच जाऊं। मगर ये 30 सिक्के जब वापस देने गया है तो उन्होंने वापस, उन्होंने क्या, तू कीमत साढ़े को ले ली है, हुण तू जान ते तेरा कम जाने। तो अब क्या हुआ, अब पछतावों के अंदर है। अब यीशु को उन्होंने पकड़ लिया है। अब ये इस मंजर को देख रहा है कि जब मैंने यीशु को बेच दिया है तो यीशु को वो लाम तन कर रहे हैं, यीशु के मुंह पर थूक रहे हैं, यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है, यीशु को सलीब देने के लिए तैयार किया जा रहा है, उस पर मुकदमा बाजी हो रही है, उसको मुकदमों के अंदर इन्वॉल्व करके मुख्तलिफ उसकी पेशियां हो रही हैं। जब इसने देखा कि यीशु को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको जलील और रुस्वा किया जा रहा है, तो फिर इसने कहा ये पैसे मुझसे। मगर वक्त क्या हो गया था, वक्त के ख्याल से हमें क्या होना चाहिए, वक्त क्या हो चुका है भाई। दुनिया के अंदर वक्त की जो घड़ी है ये चलती रहती है। ये किसी के अच्छे बुरे हालात को देखकर, किसी की खुशी और गम को देखकर कभी भी थमता नहीं है। वक्त की ये खासियत है, चाहे अच्छा चाहे बुरा ये गुजर जाता है, मगर इसमें किए हुए फैसले हमारी जिंदगियों के अंदर असरात को छोड़ते हैं। जरा सुनिएगा, वक्त में किए हुए फैसले हमारी जिंदगियों में क्या करते हैं, असरात छोड़ते हैं। अच्छा फैसला अच्छे असरात, बुरा फैसला बुरे असरात। जिंदगी की तरफ जाएंगे तो अच्छी चीज़ों को पाएंगे, मगर वक्त पर अगर ठीक फैसला ना किया तो फिर जिंदगी से महरूम होकर हलाकत के फर्जंद ठहर जाएंगे। यहाँ पर इसने कोशिश की कि मैं उन रुपयों को वापस कर दूं, मगर उधर सरदार काहिनों ने लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब इसके अंदर बेचैनी है, अबतरी है, मायूसी है, पछतावे है, और पछतावों की रूह इसको आकर कह रही है तूने यीशु को बेच दिया है, अब तू जीने के काबिल, अब तू जीने के काबिल। और क्या हुआ, उस रूह ने इस पर अटैक किया और ये उन रुपयों को कहाँ फेंक कर गया है, हैकल में फेंक कर गया है। और फेंकने के बाद निकल गया। और अब उन रुपयों को लेकर जरा देखिएगा किया क्या गया है, जरा खोलिएगा 27वें बाब की 6वीं आयत जरा पढ़िएगा जल्दी से। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से मुहार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। जी, उन रुपयों से क्या खरीदा गया, एदी जड़ी बेईमानी दी कमाई दा सी हिस्सा
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਸੌਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਤੇ ਲੋग वैसे ही बड़े परेशान ने सौदियां तो, मगर यहूदा ने शरारत का क्या कर लिया, सौदा कर लिया। और कलाम बयान करता है, अगर हम पुराने अहदनामे में भी देखें तो वहां पर लिखा है कि दगा की दौलत हासिल करने वाला अपनी क्या पाता है जी, आधी उम्र पाता है। वेखो इत्थे गवाही जी, इन्हें अपनी पूरी उम्र नहीं पाई, जो फ्रॉड करके झूठ बोल के और बेइंसाफी दी दौलत में इन्हें की कर लिया, हासिल कर लिया, तो फिर अपनी उम्र तो भी की कर बैठा। इसलिए जड़े झूठ बोल के गलत बयानियां करके रुपयों को इकट्ठा करते हैं, मैं समझती हूँ आप इस चीज पर गौर करें कि आपके बाद इसको कौन इस्तेमाल करेगा। क्या आप अपनी औलाद को नेक कमाई खिला रहे हैं या रोले दी कमाई खवान दे, शरारत दी कमाई, हाँ, दगा की दौलत, फ्रॉड, झूठ, गलत बयानियां करके पैसे को कमाया जा रहा है और एक नवाला भी उसमें से खाना नसीब। जरा सुनो, जड़े कहते फिर झूठ ते बोलना पैंदा, की करिए, दुनिया च रहने आ, बच्चे भी पालने ने, हैं, इन्हें अपनी कमाई तो की खरीदे। वो कई एडे हुशियार होंदे ने, तनख्वाह उन्हां दी 70 हुंदी है, ते कहणगे बस गुजारा चल रहा है, 70,000 थोड़ा। भाई वाइस की किताब में लिखा है, आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए तो भी उसका जी, तुसी सारी दुनिया में हासिल कर लो, अगर अपनी जान का नुकसान उठाओगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, तुसी जेड़े इदारियां च काम कर रहे हो ना, खुदा तुहानू उत्थे बरकत देवे, उत्थों झूठ लैके अपने बच्चों लिए कमा के कभी भी ना हो, क्योंकि जिस चीज़ में खुदा बरकत ना रखे, आप जो कुछ मर्जी कर ले, आप कभी बरकत को हासिल, हाँ, बरकत को हासिल। भाई मैं कहती हूँ जरा आप अपने खुदा का रुतबा तो देखें। वो जेड़े पत्थर विच कीड़े नू दे रहे, अपने तालब नू क्यों नहीं देगा, अपने तालब नू। वो कहते हैं बब्बर का बच्चा भूखा रहे दे, पर मेरे तालब कभी किसी चीज़ दे मोहताज, फ्रॉड करके कभी पैसा ना कमाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, ते अपने आप नू मासूम भी ना बनाया करो। ते कई गरीब बड़ा बना लेंदे, हुकूमत दे रही है, कौन दे रही है भैया, थलड़ी हुकूमत को तुसी ले लोगे, इसलिए ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। जो उतली हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ हक च होगी, जमीन ते कभी मोहताज नहीं रहोगे। उत्ते वाली हुकूमत नू की करो भाई, कलामे मुकद्दस में लिखा है, खुदा जो जिसको हम मानते हैं वो बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा है। आमीन। ते असीं कहने हुकूमत दे रही जी, वो कई भैणां ते 2-2 शहरों चों बेवा फंड इकट्ठा कर रही हैं। हाँ, अभी सुनिएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में एक मुझे पता चला, एक भाई थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और ये सदर में उनका ऑफिस था, और वो भाई इस इलाके के रहने वाले हैं, कैप्टन सनावला कॉलोनी, ना नहीं दसना खिलाफ हो जाए, इत्थे ही रहंदे जी, पिछली गली हुण जरा नेड़े हो जाए। ते की कहंदा, मैं की हाँ, बेरोजगार हाँ। बेगम ओदी गई अंगूठा ला के आ गई, और बेगम भी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो बंदा भी गवर्नमेंट जॉब, चलो बेगम दी नहीं उन्होंने जान दो, बेगम दी भी जॉब है, बंदे दी भी जॉब है। जो पिछों होया ना चेक कि एक की मतलब इन्हां दी खानदानी हिस्टरी की है, ते 3 मरले का प्लॉट उस बंदे दे नाम ते, गवर्नमेंट जॉब ओदे कोल, ओदी बीवी कोल, ओदे पुत्तर कोल गवर्नमेंट जॉब। हुकूमत ने पिछों कर दिता केस, किथे ओदे ते नहीं कीता, ओदे इदारे ते कीता। इदारे वालियां ने फड़िया उन्होंने, ते उन्हां कहा अगर तू पैसे 1 हफ्ते के अंदर ना वापस कीते ते तेरी जॉब भी खत्म, ते तेरा सारा कुछ खत्म। ये जरा सोच समझ के चलिया करो। आजकल तो थंब प्रिंट एक बारी लाओगे, ताड़ी पूरी खानदानियां, ताड़ा चाचा, दादा, दादे दा दादा पिछों निकल आएगा। हाँ, नादरा ने ये सिस्टम किया हुआ है। अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, आप जाएं, इसको अप्लाई करें। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यूसी 14 में आए हूँ मैं, ये सारी वैकेंसीज, जितने भी रुपया पैसा मिलना है हुकूमत की तरफ से, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है,
प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किराए के घरों में रह रही हैं, उनका हक है। मगर जिनको खुदा ने गवर्नमेंट जॉब दी है, घर अपने हैं, बच्चे कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, ये आपका हक नहीं, आप दूसरों का हक खा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं दगा की दौलत हासिल करने वाला ਤੇ ਬਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈਏ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਆਈ ਜਾਓ ਤੇ ਲਿਆਈ ਜਾਓ। ਬੇਵਾ ਫੰਡ ਤਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਤਾਂ ਵੀ ਆਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਲਹਿਰਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਹਾਂ भाई ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं बेवाओं का यतीमों का भी दादरस हूँ। खुदा आपकी ज़रूरत को पूरा करना जानता है। जब हम उसके हजूर में चलते हैं तो वो ज़मीन पर हमें सरफराज करता है। अब यहाँ पर इसने बेच दिया, बेचने के बाद पछता रहा है और उसी रुपयों को लेकर जब हैकल में जा रहे थे, हैकल के सरदार भी उन्होंने कबूल ते रब किवें कबूल करेगा? भाई इन्हें अपने लिए मौत खरीदी, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਗਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕੱਢਾ। ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ, ਯਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਖਰੀਦ ਗਿਆ? कब्र खरीद गया। भाई इंसाल की किताब में लिखा दानिशमंद वो शख्स है जो अपने पोते के लिए मेरास छोड़ता है, मगर याद रखिएगा मेरास किस कमाई की छोड़ रहा है। हाँ ये नहीं इधरों भी खिंचू उधरों भी खिंचू, खिंचू जाओ, जिधरों भी आंदा खिंची जाओ खिंची जाओ खिंची जाओ, बाद चों वेखना भी नसीब। फिर लोग ऐसे इंसानों की मैयत पर भी बैठ के रोते हैं, चंगा भला सी हैं हाले तो एक पुत्र भी नहीं विआया, तानू की पता अंदरों ने की कुछ कमाया, इसलिए रब छेती ले गए। हाँ सीखने वाली बात। हम कहते बस तौबा का कलाम होए, होली स्पिरिट का है तो बस ठीक है। तरबियत नसीहत जब तक नहीं होगी हम तरक्की। कितने जिसको समझ आ रही है कि झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना, जरा हाथ चुको वेखो कितनी अकलमंदी की गल है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ रुपए पैसे की बरकत छड़ के जावांगे जे अज तो बाद असी झूठ करके बोल के ना कमाया। हाँ समझ आ रही? ये होली फैमिली दे विच मैं बड़े केस वेखे, उन्हें कईयां नूं जॉब तो कढ़ दिता, कहंदे ने असी क्रिश्चन हाँ तां कढ़े गए। और मैं एक दिन गई होली फैमिली च किसी दे कोल, मैं कि इन्हां दा मसला की? कहंदे ने ये भी अजकल ना दूजे हार झूठ बोलन लग पे ने हैं, साडे हालात नहीं सही, मैं बेवा वां मैनू ही दे के जाओ, करदे उत्थे सफाई दा ते नर्सिंग दा काम है। वो कहंदे ने ये भी अजकल दूजे हार की कर रहे ने, कहंदे ने मैंने वहाँ बैठे हुए किसी ने मुझे कहा कि हमने कभी नहीं था देखा कि क्रिश्चियन लोग झूठ बोले, मगर अब आपके लोग भी क्या करते हैं। मैं कि भाई बुरा ना मनाई, कहंदा की होया, मैं कि भी तुहाडा झूठा खाना। पहले भांडे लैदा सन, हुण भांडे इकट्ठे हो गए हैं। असी कहने इंसानियत, भाई सबसे पहले खुदा का कलाम है, बाकी इंसानियत मज़हब आपका अकीदा फ़र्क बात है। सबसे पहले खुदा का कलाम है। जब हम इसको ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, खुदा हमारी इज्जत को कायम रखता है। दगा की दौलत हासिल करने वाला हुण सिक्के सुट गया, हुण सुट्टे दे भावें रखे, उस कमाई का जिहड़ा हिस्सा इन्हें लैना सी, अपने गलत डिसीजन की वजह तो नजात हिंदे अपने उस्ताद नूं की कर गया, दाल आ गया। उस्ताद दे नाल नाले हैं, चर्च दे नाल नाले, पास्टर दे नाल नाले, सिस्टर जी असीं नाल नाल ही हां। मैनूं खुदा कहंदा वेखी विच कोई यहूदा नहीं हुंदे, इस दादा नूं भी की कर जांदे ने,
ਉਸਤਾਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उस्ताद को भी उस्तादी लगा गया, अपने हाथों से अपने उस्ताद को भेज कर चला गया और कहता है कि मैं ही हूँ। उन्हें क्या तू आप ही कह छड़े, हाँ कहता क्या वो मैं ही हूँ? कहता तूने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि तू ही है जो मुझे दुख देने वालों में से अव्वल लिस्ट देते हैं। अपने चाल चलन तो की है मसीह दी सलीब दा, अपने उस्ताद दा, ਆਪਣੇ ਨਜਾਤ ਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਿੱਕੇ ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚਦਾ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। इधर इसने फेंक दिया और उन सिक्कों को लेकर हैकल में डाला। ते अपनी जड़ी झूठ फरेब दी कमाई है जरा घर ही इस्तेमाल करया करो, ठीक है। और मैं पिछले दिनों च हदिया मैनू वेखण दा शर्फ हासिल होया, जदों मैं हदिया खोलिया 10 दा नोट भी पाटिया होया, 20 दा कड्डिया ते कलियां फलिया होया। मैं कि खुदावंद मैनू नहीं पता गुरबत की वजह तो दिता गया या तेनू वैसे ही दिता गया, ये मैनू नहीं पता, मगर मैं दुआ ज़रूर की थी भाई जब हैकल में देते हैं तो अपना बेस्ट नोट निकाला करें, खुदावंद आपको बेस्ट देना शुरू करेगा। आमीन। कट्टियां भी चुन के वे नोट गलिया होया, मैनू दुख होया। मैं क्या की खुदा ने कहा वेख 30 सिक्के सुट गया सी हैकल च, ये पा के नहीं गया, जिन्हें पाया नहीं दिल नाल ते ये समझ सुट के गया। कलाम में लिखा खुदा खुशी से देने वालों को ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਮ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਕਲ ਦਾ ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਦੀਆ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਦੀਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ थे ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। मगर ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ कोई असर नहीं। ज़रा खोलिएगा भाई अमाल की किताब, उसका पहला बाब 19वीं आयत। कुछ लोग अब इसका ये ओहदा ख़त्म हो गया, अब ये शागिर्दियत में से काट दिया गया। जब इसने 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया तो ये 12 की लिस्ट में से क्या हो गया? जरा इधर देखो, वो बह जाएंगे। ये 12 की लिस्ट जो की हो गया, 12 बार हो गया, बोलो जरा 12 की लिस्ट जो की हो गया, ये 12 बार हो गया। हुण समझ रहे मैं नहीं रवांगा तो यीशु नूं पता नहीं होर काम करन वाला लभना ही। जरा पढ़े वहां, यहाँ पर देखिएगा जो इस खेत का कुम्हार, इसको कुम्हार का खेत भी कहा गया क्योंकि ये खून की कीमत से खरीदा गया था। और इस खेत का नाम जरा हम देखेंगे। जी अंकल जी पढ़िएगा, फिर इससे आगे जाएंगे दूसरे उसके। वालों को मालूम हुआ कि यहाँ तक के उस खेत का नाम उनकी जुबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। सुनियो जरा, केड़ा खेत? खून का खेत। उच्ची बोलो जरा, केड़ा खेत? खून का खेत। इसके जो रुपए ये फेंक कर क्या है, सरदारों ने ये फैसला किया कि ये खून के पैसे हैं जो यीशु मसीह को बेच कर लिए गए हैं, ये इस थैली में डालने के काबिल, इनको कबूल और इनको क्या करो, इनसे किसी के लिए खेत खरीद दो जो राह गुजर मर जाए, जो रास्ते में मरा हुआ पड़ा मिल जाए, उसके लिए इस खेत को खरीद कर रख लो ताकि राह गुजरों के दफन करने का एक खेत क्या हो जाए, अलग हो जाए, और खूनियों का खेत भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। और इसका नाम किसने रखा? जरा सुने, बड़ी नॉलेज वाली गल है। हैकल दमा किन्ने ना रखा? ये सरदारा ने ना नहीं रखा। ये जड़ा ना रखा गया ना, जो इसकी हिस्टरी पढ़िए ते इस खेत का नाम बहुत सारे लोगों ने मिल के रखा, क्योंकि यीशु दे लहू की कीमत दे के खेत की सी खरीदिया गया सी। और अमाल की किताब में इसकी हिस्ट्री मिलती है। अगर हिस्ट्रिकल बुक्स को हम पढ़ें तो ये किसी नबी ने खेत का नाम नहीं रखा या किसी भी रसूल ने इसका नाम नहीं रखा, ये आम लोगों ने इस खेत का नाम रखा हैकल दमा, जिसका मतलब है खून का खेत। जब ये फेंक कर चला गया और इसकी मौत
जब हम मत्ती में देखते हैं तो वहां पर लिखा है इसने गला घोंट कर अपनी मौत वाक़या की, और जब ये ऊपर से गिरा नीचे तो इसका पेट भी फटा और इसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई, और जो खेत यीशु के खून से खरीदा गया था वो इसकी कमाई का इसको कुछ भी हासिल ना हो। इसलिए वो कहते दगा दी दौलत हासिल करने वाला अद्धी उम्र पांदा है। जरा देखियो ज़बूर की किताब 37वां बाब 16 आयत, इधर देखिएगा लिखा हुआ है सादिक का थोड़ा सा माल जेड़ा असी नेक नीति नाल कमाने आ, जेड़ा असी अपना खून पसीना बहा के कमाने आ, और थोड़ा जिहा माल शरारत दी। यहाँ पर देखें जो सादिक जो रासमाजी से कमाया हुआ पैसा है वो हमारी जिंदगियों में बरकत को जारी करता है। जी, सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, झूठियां दी दौलत तो बेहतर है, दगाबाजां दी दौलत तो बेहतर है, फरेबियां दी दौलत तो बेहतर है। केड़ा माल जेड़ा सी रास्तबाजी नाल ताकत दे नाल कमाने, प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत है आपकी। वो कहता है तू मेरे हजूर चल, और ये असी रुपए पैसे च भी कामिल होना है। किन्ने चाहते ने असी लखपति बनी, करोड़पति हैं, किन्ने ने जड़े हजार आज ही रहना चाहते हैं। ਇਹ ਅੱਜ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਬਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਈ ਪੱਤੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, पर हाथ फेर भी नहीं चुका, नहीं पता नहीं है। जी, कितने चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे, आज के बाद झूठ बोल के पैसा ना कमाए, और किसी को लालच देकर भी पैसा, और किसी की जगह पर भी जाकर उसकी नौकरी के दुश्मन। वो एक ठेकेदार आंदा एस्टीमेट दे के जाता, भाई ये तेन 25,000 रुपये च मैं करके देना है। दूजा जाता है अपना बिजनेस होर उत्ते लियाण लई, वो कहना उन्हें तेन 25 किया ना, चल तू मैनू 23 दे दी। किन्ने दे दी? ओहदा ते बेड़ा गर्क कीता, नाल अपना भी कीता। इंज दा पैसा भी साडे किसी काम, क्योंकि दगा दी दौलत हासिल करने वाला। अगर हम किसी को नुकसान देकर समझते हैं हम फायदा उठाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता। कलाम में लिखा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक, वो बेचारे को रेजरिया वो एक ही ठेका आया पूरे महीने च, तो भी तू कह रहे चल 2,000 मैनू घट दे दी, तो जिन्हों घट पैसे नजर आने ने उन्हें कहना वो नहीं ठीक है, इनू दो, तो भावें वो घाटे च करके काम ही खराब कर दे। इस तरह के मामलात में ना पड़े। कुछ बहनें ऐसी होती हैं वो कोठियों में जाती हैं, कर रही होंदियां ने बेचारियां पहले काम, कुछ उन्होंने कहदियां ने नहीं सही कर दियां, सानू रख लो, थोड़े घट दे दे तो असी अच्छा करांगे। ये भी क्या है, किसी की रिजक में, किसी के रिजक में टांग मारना है, ये मामलात नहीं ठीक। यहाँ पर ले लिए 30, मगर बाद जो हजम ओदे बच्चों नू हजम, ओदे अगली नस्लों नू हजम, उन्हें आपे भी नसीब नहीं होए, उन्होंने 1 रुपया नसीब नहीं होया। 30 सिक्के बेचे, बेचण तो बाद लैण तो बाद उत्थे ही सुट के चला गया, मगर ओदी नस्लां भी उस पैसे तो की ने महरूम ने। मगर उन्हां पैसों ने जिहड़ा खेत खरीदिया गया, हुण ओदी कमाई ये सी क्योंकि उन्हें खून कीता, ते हुण ओदी कमाई चों भी खूनी खेत ही खरीदिया गया। इत्थे की कह रहे हैकल, हैकल दा यानी कि खून दा, क्योंकि उन्हें कमाई ये कीती सी। अज जरा अपनी जिंदगियां ते गौर करो, खुदा दे रूह ने मैनू इत्थों हिलन नहीं दिता, उन्हें कहा कमाई ते ही दस, क्योंकि बथेरे फ्रॉड नाल कमा रहे हैं। ते कई ऐसे ने झूठ बोल के कर्जा, मैं पिछली बारी भी दसिया, लोग समझते ने शराबी ज़ना कर हराम कर खुदा दी बादशाह च नहीं जाणगे। भाई मुकाशफा दी किताब च लिखा है कि कोई झूठी गवाही देने वाला भी खुदा दी बादशाह च, कोई झूठा खुदा दी बादशाह च। भाई दगा की दौलत हासिल करने वाला क्या पाता है अपनी, वो कहता है तू मेरे हजूर चल, हाँ फिर ख्याल करें कि किस तरह चलते हैं आप, किस तरह कमा रहे हैं आप, किस तरह अपने घर का सेटअप चला रहे हैं। लोग कहते हैं सेटअप ही चलाना है, कोई गल नहीं, एक दिन भुखे रह जाओ, हो सकता है एक दिन तुहाडा भुखा रहना तुहानू सारी जिंदगी लिए सेर और रसूदा कर दे। आमीन। एक दिन रह जाओ हाँ भुखा, की हो जाएगा? मैडिकली पॉइंट ऑफ व्यू नाल किन्ने अरसे बाद बंदा मर जाता जे भुखा रहे भाई जी, कोई पता है? हाँ
सुन लो 40 दिन भी बंदा एक जगह ते रहे थे मारदा ते जे असी ईमान च एक जगह ते आ जाइए खुदा कदी भी सानू भुखा नहीं रहन देगा। ਉਹ कदी भी साडे बच्चों नूं भुखा रहन, ਉਹ कदी भी सानू मरण नहीं देगा। असी ठहरते ही नहीं। ਉਹ ਵੇਖੋ दस रहे ने मैडिकली पॉइंट ऑफ व्यू नाल 2 हफ्ते बंदा रह सकता है, भुखा रहे जिंदा रहेगा। ਉਹਦੇ बाद मौत की हो सकती है, वाकया हो सकती है। तो असी अगर एक दिन भुखे रह जाएंगे तो खुदा की हजूरी च बह जाएंगे और कहेंगे खुदावंद जब तक तू ना आसमान खोले हम ज़मीन पर तेरे तालिब रहेंगे। तू हमारे बच्चों के लिए मुहैया कर, तू प्रोवाइडर है, तू ही मुहैया करने वाला है। तूने ये वादा किया है कि मैं यहोवा यरी हूँ और मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आप घुटने टेक लें। हो सकता तुहाडा ਉਹ ही लहजा खुदा नूं पसंद आ जाए और खुदा तुहानूं देण वाला बना दे। आमीन। ये बरकत की बात है। ते असी कहने ना मैं आप ही तो भुखी रह लांगी पर मैं अपने बच्चों नूं है। अयूब ते भी आई सी मुसीबत 5 किस्म दी। पहले ਉਹਦੇ माल डंगर ते आ गई, फिर ਉਹਦੇ बच्चे चुके गए, फिर ਉਹਦੇ बदन ते जख्म हो गए, फिर ਉਹਦੀ बीवी भी कहती है तकफीर कर ते मर जा। दिल्ली दोस्त भी कहते ने इन्हें कुछ कीता ही किन्ना मालदार सी मगर उन्हें सारी अजीयतां दे विच सारी मुश्किलों दे विच वो कहता कि असी खुदा दे हथों सुख पाइए ते दुख। जब उसने ये लफ्ज़ ही बोल दिए खुदा का आसमान खुला और खुदा ने पहले से बढ़कर उसको डबल बरकत दे दी। मगर बात है कलाम को लेने की। असी कहने कलाम नूं हुण मीटिंग दे असी कर आए हैं, असी ते भाई चर्च कर आए हैं हुण अगे साडी मर्जी असी जो मर्जी करिए। भाई चर्च ते तुसी कर आए जे, उत्थे जो सिखाया गया वो भी जिंदगी च लिया गया। सिर्फ आना नहीं है। जो कलाम पेश किया जा रहा है इसका छठा हिस्सा पेश किया जा रहा है। वो कहते हैं अपनी चाल चलन से मसीह की सलीब के क्या हैं ते दुश्मन। भाई हम दुश्मन नहीं है, हम सलीब को पेश करने वाले हैं, हम सलीब को बयान करने वाले हैं, हम निजात का पैगाम देने वाले हैं। उसने जो पैगाम हमारी जिंदगियों में रखा है हम ये पैगाम दूसरों तक ले जाने वाले हैं और मसीह का नाम लेकर मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, गरीबों को खुशखबरी देने वाले हैं, बीमारों को शिफा देने वाले हैं। अगर मसीह की पैगाम हमारे अंदर है, मसीह की सलीब हमारे अंदर है, अगर यस्सु का लहू हमारे अंदर है, उसकी असीम कुर्बानी हमारे अंदर है, हम उसको शख्सी तौर पर ले चुके हैं, तो हम सलीब के दुश्मन नहीं बल्कि हम सलीब को ऊंचा उठाने वाले हैं, हम सलीब को बुलंद करने वाले हैं और उसके वसीला से बथेरों को मसीह के करीब लाने वाले हैं। हालेलुया। ते असी केड़ी कैटेगरी दे जरा भी देखना